السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 5 نیوز اور میں ہوں صدفہ الیاس اور میں ہوں محمد اکبر طارق۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خیرپور میں بچیوں کو کینسر سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مہم کا افتتاح گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں ڈپٹی کمشنر ضلع صحت افسرہ اور دیگر شخصیات نے طلبات کو ویکسینیشن لگا کر کیا ہے۔ تقریب سے خطاب میں ڈپٹی کمشنر اور دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ 9 سے 14 سال کی بچیوں کو کینسر سے بچاؤ کی ویکسینیشن لگانے سے ان کا مستقبل محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ویکسینیشن مہم 27 ستمبر تک جاری رہے گی۔ ضلع بھر میں 1,73,343 بچیوں کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے 153 ٹیمیں دیہات میں جا کر ویکسینیشن کریں گی، جبکہ 15 فکس پوائنٹس اور 8 موبائل ٹیمیں بھی سیلاب متاثرہ علاقوں اور خانہ بدوشوں بچیوں کو ویکسینیشن فراہم کریں گی۔ سندھ بھر کی طرح میرپور خاص میں بھی سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے قومی ویکسینیشن مہم کے سلسلے میں پیپلز اسکول میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ یہ محکمہ صحت حکومت سندھ کا ایک گیم چینجر پروگرام ہے جو ہماری بچیوں کے روشن مستقبل سے وابستہ ہے۔ اس لیے سول سوسائٹی، علماء کرام اور معاشرے کے ہر فرد کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ اس کے بہتر نتائج مل سکیں۔ صوبائی وزیر ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ نے معاشرے کے ہر فرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سروائیکل کینسر سے بچنے کے لیے محکمہ صحت حکومت سندھ کی ویکسینیشن مہم کا حصہ بنے۔ 9 سال سے 14 سال کی بچیوں کو سروائیکل کینسر کی ویکسین ضرور لگوائیں تاکہ بچیوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ رخ کریں گے قصور دریائے ستلج کا، جہاں سیلابی صورتحال کی بات کریں تو پانی میں کمی کے بعد پانی کی سطح میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر نچلے درجے کے سیلاب سے درمیانے درجے کے سیلاب کی طرف بڑھنے لگا۔ سیلاب متاثرین اپنی فصلیں سیلاب کی نظر ہونے پر حکومت کی جانب دیکھ رہی ہیں۔ بیورو چیف قصور سجاد انصاری اس وقت تلوار پوسٹ پر موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دریائے ستلج کی سیلابی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو جو سیلاب کی دریائے ستلج کی اس کی تباہ کاریاں جو ہے نا وہ جاری تھی، جو اب جو ہے پانی کی کمی کے بعد جو لوگوں کی فصلیں ہیں وہ جو لوگوں کی زمین ہے وہ نظر آنی تو شروع ہو گئی ہے، لیکن اس میں مٹی ریت کے جو نا وہ ڈیرے ہیں، کسان پریشان ہیں اور دوبارہ جو ہے پانی کی سطح میں جو اتار چڑھاؤ ہے وہ بھی جاری ہے، جس نے کسانوں کو جو ہے نا وہ پریشان کر کے رکھا ہوا ہے کہ نیکسٹ جو آنے والی سبزیاں ہیں یا فصلیں ہیں وہ کاشت کرنے کے لیے جو زمین ان کی وہ سیراب نہ ہو سکی ہے، اور پانی کے اضافے نے جو ہے نا ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ بھی کر کے رکھ دیا۔ ہمارے ساتھ ایک کسان موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ جی بتائیے گا کہ پانی نے تو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، فصلیں تباہ کر دی ہیں، تو کیا نقصانات ہوئے ہیں اور کیا حکومت سے آپ مطالبہ کریں؟ ہمارا جی ادھر لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ 1 لاکھ روپے فصل میں خرچہ آتا ہے 1 ایکڑ پر، جو 1 ایکڑ کا 3 لاکھ روپے ٹھیکہ ہے۔ یہ بتائیں ہم وہ ٹھیکہ کیسے دیں گے؟ وہ جو نقصان ہوا ہے، ہم نے ایک خرچہ کیا 1 لاکھ روپے اوپر، وہ ہم کہاں سے دیں گے؟ وہ ٹھیکہ کدھر سے دیں گے؟ زمین 7-8 ایکڑ ہے اور اس کا خرچہ ہم کیسے کریں گے؟ آگے کی فصل کا کیسے کریں گے؟ حکومت سے کیا مطالبہ کریں؟ یہی ہے بھی ہمارا وہ جو خرچہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کیا جائے۔ جی جیسے آپ نے کسان کی بات سنی ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ حکومت سے مطالبہ انہوں نے کیا ہے کہ 3 لاکھ روپے تو جو ہے فی ایکڑ کا ہم نے ٹھیکے پہ لیا ہوا ہے، اور 1 لاکھ روپے جو فصل پر جو ہم نے خرچہ کیا ہوا تھا وہ سارا پانی کی نظر ہو چکا ہے، مالی نقصان ہو چکا ہے بہت زیادہ۔ حکومت سے مطالبہ وہ یہی کر رہے ہیں کہ ہمارے نقصان کا ازالہ کیا جائے اور ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے۔ جی دوسری جانب میرپور ماتھیلوں میں سروائیکل کینسر سے بچاؤ مہم کا آغاز 15 ستمبر سے لے کر 27 ستمبر تک کر دیا گیا ہے۔ میرپور ماتھیلوں کے اسکول میں خواتین میں پھیلنے والے سروائیکل کینسر سے بچاؤ مہم کے حوالے سے آگاہی تقریب منعقد کی گئی ہے، جس میں شہریوں، طلباء اور طالبات نے شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں ذیشان احمد ارائیں کی اس رپورٹ میں۔ میرپور ماتھیلوں کے ایک نجی اسکول میں خواتین میں پھیلنے والے سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی آگاہی مہم کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی پاکستان پیپل پارٹی ضلع گھوٹکی کے صدر اور ضلع کونسل گھوٹکی کے وائس چیئرمین میر بابر خان لنڈ اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 تنویر احمد تھے، جبکہ ڈی ایچ او گھوٹکی رو آفتاب احمد، صحافی ذیشان احمد ارائیں سمیت محکمہ صحت کے افسران، شہریوں اور طلباء و طالبات نے شرکت کی۔
इस मौके पर चैनल 5 से गुफ्तगू करते हुए मीर बाबर खान लुंड ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर एक खतरनाक मर्ज है, इससे बचाव हर फर्द की जिम्मेदारी है। वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। सर्वाइकल कैंसर, अब यहाँ पर मैं ये कहूँगा सर्वाइकल कैंसर का ये है कि लोगों का अदराक नहीं होगा, तो उसको हम सीधी यानी उसमें अगर हम अपने इसमें लैंग्वेज में बताएंगे, जिसको हम कहते हैं बच्चेदानी का कैंसर, जो बहुत कॉमन है और उससे यानी जो है कि फीमेल्स की अमवात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं एवरी ईयर इन पाकिस्तान। तो ये बड़ा नेक मकसद है और हमें बहुत फैसिलिटेट हमारी गवर्नमेंट कर रही है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है, जिसके लिए मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इसमें एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और इसके लिए मैं घोटकी के लोगों से गुजारिश करूंगा, ये आपके डोर स्टेप पे आपको एक फैसिलिटी दी जा रही। अपने घोटकी के बहन भाइयों, पेरेंट, बुज़ुर्गों सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारा नहीं, बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी मुहिम है। उनको एक मौलिक बीमारी जो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में उनके अल्लाह न करे खुदा ना खास्ता किसी को हो सकती है, तो उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर है और बहुत अच्छा मेजर है। और गवर्नमेंट आपको डोर स्टेप पे हेल्थ खाते की टीम्स पहुंचेंगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि ज़रूर हमारी जो छोटी बच्चियां हैं, हमारी बेटियां बहनें, उनके मुस्तकबिल के लिए थोड़ा शऊर बेदार करें और इस मुहिम में मैं गुजारिश करूंगा सब भरपूर हिस्सा लें। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तनवीर अहमद ने कहा कि दुनिया की ये जो सर्विकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन है, HPV वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है, दुनिया के 144 मुल्कों में इस वक्त लग रही है और पाकिस्तान इंशाल्लाह दुनिया का 145वां मुल्क बनेगा जहां पे ये वैक्सीन हम 9 से 14 साल की बच्चियों को करेंगे वैक्सीनेट इसमें। और ये जैसे सर ने कहा कि बच्चेदानी की कैंसर के खिलाफ बचाव की वाहिद सूरत है। जबकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राव आफ्ताब अहमद का कहना था कि नेशनल काज है हमारा, जिसमें 9 से 14 साल की बच्चियों को हम सर्वाइकल कैंसर के बचाव की वैक्सीन लगा रहे हैं। उसके अंदर वो उन्होंने शिरकत की और इंशाल्लाह ताला इन लोगों की शिरकत से और मीडिया के ताउन से लोगों के अंदर जो माशरे के अंदर जो गलत फहमियाँ हैं वो भी दूर हो जाएंगी और हमारी कैंपेन प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होगी। और हम तकरीब के इख्तिताम पर आए हुए मेहमानों को सिंधी अजरा के तहत भी पेश किए गए। कैमरा टीम के साथ जिशान अहमद राइन, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर 5 न्यूज़, मीरपुर माथेलो। पंजाब भर की तरह चीचावती में भी सर्वाइकल कैंसर के बचाव की मुहिम शुरू हो गई है। इस मुहिम में 9 से 14 साल की उम्र तक की बच्चियों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जो कि 27 सितंबर तक जारी रहेगी। मुहिम का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर जावेद मुमताज और DPO हेल्थ आसिम वक़ार ने किया। मुहिम का मकसद कमसिन बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाना है। महकमा सेहत की टीमें स्कूलों में और घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगी। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के खुसूसी अहकामात महकमा फूड नारोवाल ने क्रैकडाउन करते हुए 2.5 मन मुज़र सेहत गोश्त बरामद कर लिया है। तफसील के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रिजवी की सरबराही में डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी मोहम्मद नासिर चौधरी की ज़ेर निगरानी फूड सेफ्टी टीम ने पुलिस के साथ मिलकर अड्डा सिराज के करीब पोल्ट्री शॉप पर छापा मारकर 100 किलोग्राम नाकिस गोश्त को तल्फ करके दुकान को सील कर दिया। सियालकोट में सैलाब की बेरहम मौजों ने हंसते बसते आशियाने को उजाड़ दिया। हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर एक ऐसी ही सैलाब से मुतासिरा फैमिली के साथ मौजूद हैं जो सरकारी और किसी मसीहा की इमदाद के मुंतजर हैं। मजीद जानते हैं। जी अकबर, आगाह कीजिएगा, क्या अहवाल है? जी बिल्कुल, सियालकोट में सैलाब की तबाहकारियों की बात करें तो सियालकोट में जो सैलाब भी जो बेरहम मौजें थी, जिसने बहुत से देहात और शहरी इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया। ज़री रकबा था वो भी जो है इस वक्त नकारा हो गया। इसके साथ साथ बात करें शहरी इलाकों की तो शहरी इलाका भी बड़े मुतासर हुए हैं और कीमती जाने भी रेस्क्यू दादो शुमार के मुताबिक 20 से ज़ायद जो कीमती जाने हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। इसके साथ मैं आपको बताते चलूँ, मैं इस वक्त
शहरी इलाका चाल लारिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक खूबसूरत आशियाना जिसमें 10 के करीब अफराद यहाँ पर हंसते बसते रहते थे। सैलाब से पहले जो सैलाब की नज़र होने वाला आशियाना है वो इस वक्त जबो आली का शिकार है। और यहाँ पर जो कफालत कर रहे थे शहरी उन बच्चों की, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइएगा कि ये सैलाब की नज़र जो हुआ है, जो सैलाब आया ना सुनना रात को 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 17 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣਾ, ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਲੀਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, शहरी का यही कहना है कि हुकूमती जो कोई भी नुमाइंदा है वो इनकी तरफ नहीं आया और ये हुकूमत की मदद के मुंतजिर नजर आ रहे हैं। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो सैलाब की तबाहकारियों से जो इनका आशियाना खूबसूरत हंसता बसता घर था वो इस वक्त जो खंडर का मंजर पेश कर रहा है। ताहम ये अपनी जो है हुकूमत की तरफ आंख लगाए बैठे हैं। जी चिन्योट में सैलाबी सूरत हाल के बाद मसनूई महंगाई करने वाले बेलगाम हो गए हैं। सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतों में इजाफे की वजह से खरीदारों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मजीद बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां मुनव्वर हुसैन अपनी रिपोर्ट में। चिन्योट में सैलाबी सूरत हाल के बाद ग्राम फरोशों ने कमर कस ली। सब्जियां और सब्ज मसाला जात की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया। खरीदारों की मुश्किलात बढ़ गईं। टमाटर, अदरक, लहसुन, गोभी व दीगर सब्जियां और सब्ज मसाला जात आम आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गईं। खरीदारों का कहना है कि खरीदने आया हूँ 260 रुपए किलो गोभी मिला है। उसके अलावा आलू जो है उसकी कीमत में भी काफ़ी हद तक इजाफा किया हुआ है। सैलाबी सूरत हाल के बाद काफ़ी हद तक महंगाई बढ़ चुकी है। तो सब्जी वगैरह भी महंगी है। ये कद्दू है 150 रुपये किलो है, तो मेहरबानी करें इसको कम करें। तो टमाटर 300 रुपये किलो है, आलू 120 रुपये किलो है, प्याज 150 रुपये किलो है, हरी मिर्चों ने हाथ लगाना, धनिया 300 रुपये किलो दे रहे हैं। क्या खाएं? ये 600 रुपये का ये सब्जी लेके जा रहा हूँ। गरीब आदमी किधर से ले आए? सैलाब आने से पहले सब्जियाँ सस्तियाँ थी, अभी बहुत महंगी, हाथ लगाने के करीब नहीं आ रही। सब्जी में टमाटर का रेट हाथ से ज़्यादा तजावुज़ कर चुका है। इसका हमारी हुकूमत को चाहिए कि एक मुतबादल उसका कोई जरिया निकाले, उसके रेट को कंट्रोल करें, जिससे हर बंदा अपने स्कूल से चीज़ें खरीद सके। जब से सैलाब आया टमाटर को आग लगी हुई है। हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन बस दुकानदारों ने खुद इसके रेट में नरख में इजाफा किया है। 300 रुपये टमाटर हो चुका है और प्याज भी 350 में चल गया, क्योंकि गरीब आवाम ये खरीद नहीं सकती। ये हम हुकूमत से हमारा मुतालबा यही है कि वो सब्जियों पर और मिसाले जात पर कंट्रोल करें। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि सब्जियां और सब्ज मसाला जात की कीमतों को फौरी तौर पर कंट्रोल करे। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ मियां मुनव्वर हुसैन, 5 न्यूज़ चिन्योट। दूसरी जानिब सादकाबाद मोटरवे M5 से 11 अफराद के अगवा करने का मामला। डाकुओं ने मुखबियों को सैलाब के पानी में छोड़कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मुखबियों का कहना है हमारे दोस्त डाकुओं ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। मुखबियों की दिहाई हमें बाजियाब करवाया जाए। हम 9 अफराद बच गए हैं, हमें भी मार देंगे। जबकि डाकुओं ने मुखबियों की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दी है। दूसरी जानिब मुखबियों की रिहाई के बदले अंधेर गैंग के सरगना तनवीर अंधर ने जेल में कैद अपने भाई की रिहाई का मुतालबा कर दिया है और पुलिस को 2 दिन की मोहलत दी है कि भाई को रिहा ना किया तो मुखबियों को मार दूंगा। जबकि 11 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस मुखबियों को बाजियाब करवाने में नाकाम है। उधर बूरेवाला में HPV वैक्सीनेशन कौमी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमरान तौकीर के मुताबिक वैक्सीन सिर्फ 9 से 14 साल की बच्चियों को लगाई जा रही है ताकि इन्हें मुस्तकबिल में सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आलमी इदारा सेहत यूनिसेफ और कौमी इदारे सेहत की तौसीक शुदा और इसके कोई मुज़र सेहत असरात नहीं हैं। डिप्टी कमिश्नर ने वालिदैन, असातिज़ा और कम्युनिटी लीडर से भी अपील की है कि वह कौमी जज्बे का मुजाहरा करें और बच्चियों को सेहत की तरजीहात देते हुए मुहिम को कामयाब बनाएं।
गुजरांवाला की आवाम का दरीना मसला पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हल हो गया। 17 सितंबर को वज़ीर आला पंजाब पहलवानों के शहर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर आला 60 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद और तलबात को फौरी सफरी सहूलियात फराहम करने का भी ऐलान करेंगे। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी ज़फरुल्लाह चौधरी। जी हाजी ज़फरुल्लाह। जी बिल्कुल, पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ही पुराना दरीना मसला था, जिसकी वजह से शहरी बड़े परेशानी में मुब्तला थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से और इंतजामिया की तरफ से इस बहुत बड़े मसले को हल कर दिया गया है और 17 सितंबर को गुजरांवाला में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो है इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर रही हैं और बिल्कुल इलेक्ट्रिक बसें जो है वो इस वक्त गुजरांवाला में पहुँच चुकी हैं। और ये इलेक्ट्रिक बसें जो हैं ये वज़ीराबाद से कामों की और वज़ीराबाद से अलीपुर चट्टा की तरफ ये इनके रूट होंगे और बिल्कुल कामों की से वज़ीराबाद का जो सफ़र है तकरीबन 50 किलोमीटर का सफ़र बनता है और इसमें अगर स्टॉप की बात की जाए तो हर जो 800 मीटर पर इसका स्टॉप होगा और तकरीबन 35 के करीब जो है कामों की से जब वज़ीराबाद तक इसके स्टॉप किए जाएंगे। और बिल्कुल यहाँ पर अगर बात की जाए कि यहाँ पर शहरियों को इस बस से रिलीफ क्या मिलेगा तो बिल्कुल यहाँ पर जो शहरी हैं गुजरांवाला के वो 250-300 रुपए में ये जो सफर जो वज़ीराबाद से कामोगी का करते थे मुख्तलिफ चांद गाड़ियों पर और यहाँ पर जो चंगी रिक्शों पर, अब यही सफर जो है इलेक्ट्रिक बस पर करेंगे और तकरीबन 50 रुपए के सिर्फ जो है इनको यहाँ पर अखराजात आएंगे। अगर दूसरी तरफ बात की जाए रिक्शा वगैरह की, यहाँ पर जो चंगी रक्षी हैं जो यहाँ पर चांद गाड़ियाँ हैं वो परेशान भी नजर आते हैं, वो मजूसी का शिकार है। बिल्कुल इस जो ये रूट थे उन पर वो चांद गाड़ियों के लिए लोग सफर करते थे, वहाँ पर 200-300 रुपए तक जो शहरियों से वसूल करते थे, लेकिन अब वो मायूस नजर आ रहे हैं, नाला नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी जो रोजी रोटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक बसें जब चलेंगी तो हमारे जो पैसेंजर थे वो बिल्कुल हमें नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से वो परेशान दिखाई। लेकिन गुजरांवाला के शहरी जो इस वक्त बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं और 17 सितंबर को वज़ीर आला पंजाब इसका इफ्तिताह करेंगी और ये बसें जो है ये कामोगी से वज़ीराबाद और वज़ीराबाद से अलीपुर चट्टा की तरफ ये बिल्कुल पैसेंजर को लेके जाएंगे और जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला था जो गुजरांवाला के शहर का वो हल हो गया है। जी FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में बदनाम इंसानी स्मगलर को सियालकोट से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम यूनान कश्ती हादसे में मुलविस है और उसने यूनान भिजवाने के नाम पर मजमूई तौर पर 1 करोड़ 23 लाख रुपए हत्या है। मुलजिम 4 मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम गुज़श्ता कई माह से रुपोश था। कर बीमार और मुर्दा जानवर ज़िबा करने वाला पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आ गया। भारी मिकदार में बीमार और मुर्दा जानवरों का गोश्त तल्फ कर दिया गया, जबकि जिम्मेदार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर डिप्टी डायरेक्टर ने टीम के हमरा लाहौर रोड पर कार्रवाई की। मुलजिम घर में सस्ते दामों बीमार और मुर्दा जानवर खरीद कर ज़िबा करता था। लाइव स्टॉक के वेटनरी स्पेशलिस्ट ने गोश्त का मुआयना किया जो मुज़र सेहत साबित हुआ। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुज़र गोश्त शहर और मुज़ाफ़ात के मुख्तलिफ होटलों को सप्लाई किया जाना था। फूड अथॉरिटी के मुताबिक आवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ कवानीन में मजीद सख्ती की जा रही है और इस मकरू कारोबार को जड़ से उखाड़ने का अज़्म किया गया है। सैलाब की तबाहकारियां जहां जिंदगी के दीगर शोबों को मुतासर कर रही हैं, वहीं चिश्तिया में महंगाई ने भी आवाम का जीना दोभर कर दिया। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं और आम आदमी के लिए सब्जी खरीदना एक ख्वाब बनता जा रहा है। तफसीलात जानते हैं चिश्तिया से नुमाइंदा मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी की रिपोर्ट में। सैलाब के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने चिश्तिया में एशिया खुर्दोनोश की कीमतों को आसमान तक पहुंचा दिया। सब्जी मंडी में टमाटर, प्याज, आलू और दीगर सब्जियों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। टमाटर 100 रुपये किलो से बढ़कर 300 रुपये किलो, प्याज भी 200 रुपये किलो और आलू भी 250 रुपये किलो फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों के बजट को बुरी तरह मुतासर कर दिया। जैसे पहले कारोबार नहीं है, ऊपर से महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम सब्जी खरीदने के लिए आए थे इधर बाजार में। टमाटर जो पहले 100-150 रुपये किलो मिल रहे थे वो अब 300-400 रुपये किलो दे रहे हैं। अदरक जो 200-300 रुपये किलो था अब 600-800 रुपये दे रहे हैं। गोभी 400 रुपये किलो दे रहे हैं और जो दाने वाले मटर थे वो पहले 150-200 रुपये किलो मिल रहे थे वो 600-700 रुपये किलो दे रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि महंगाई को कम किया जाए और गरीब आदमी के घर का भी चूल्हा जल सके।
सैलाब से रई ज़मीनें और खेत ज़ेर आब आने के बाद सब्जियों की किलर पैदा हो गई। नकलो हमल के में मुश्किलात ने भी सूरत हाल को मज़ीद गंभीर कर दिया। चिश्तिया की अवाम पहले ही सैलाब से मुतासर है और अब महंगाई ने इनकी मुश्किलात को कई गुना बढ़ा दिया है। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करे ताकि आम आदमी का चूल्हा भी जल सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी, 5 न्यूज़, चिश्तिया। महकमा ज़राअत तौसीअ मंडी बहाउद्दीन के ज़ेर एहतमाम वज़ीर आला पंजाब इंटर्नशिप स्कीम बराए ज़री ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप मुकम्मल करने पर इंटर्नीज़ के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में तीनों तहसीलों के असिस्टेंट डायरेक्टर्स, ज़राअत तौसीअ ऑफिसर्स और 30 इंटर्नीज़ ने शिरकत की। डायरेक्टर ज़राअत तौसीअ गुजरात डिवीजन डॉक्टर इरफानुल्लाह वड़ाइच का कहना था कि शोबे ज़राअत हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी में बुनियादी अहमियत का हामिल है और इसी अहमियत के पेश नज़र हुकूमत ने नौजवान ज़राई ग्रेजुएट्स की अमली तरबियत के लिए इस स्कीम का अजरा किया गया। उन्होंने इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले ज़राई ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीअ शेख मोहम्मद इकबाल ने इंटर्नशिप का साल मुकम्मल करने वालों को खराज तहसीन पेश किया और नए आने वाले इंटर्नीज़ को खुशामदीद कहा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ने इस उम्मीद का इजहार किया कि नौजवान न सिर्फ अमली तरबियत में इजाफा करेंगे बल्कि काश्तकारों की खिदमत करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। खबर दें आपको, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस बैट नंबर 14 की जानिब से तलबा में रोड सेफ्टी और हादसात की रोकथाम के लिए ब्रीफिंग सेशन का भी इनेकाद किया गया है। SP आतिफ शहजाद की खुसूसी हिदायत पर DSP मोटरवे सायरा तारिक की ज़ेर निगरानी ट्रैफिक कवानीन के बारे में शऊर उजागर करने और तलबा में रोड सेफ्टी के उसूलों को फ़रोग़ देने के लिए हबीबाबाद में निजी स्कूल में एक ब्रीफिंग में सेशन का इनेकाद हुआ है। सेशन का मकसद नौजवान नस्ल को सड़कों पर महफूज रहने और जिम्मेदारान शहरी बनने के हवाले से तरबियत देना था। मोटरवे पुलिस के अफसरान ने तलबा को ट्रैफिक कवानीन, सड़कों पर एहतियाती तदबीर, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल और पैदल चलने वालों के हुकूक से मुतालिक आगाही फराहम की। उधर आरिफवाला में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ इंतजामिया का सख्त क्रैकडाउन, मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 90 टन जखीरा शुदा गंदम बरामद करके महकमा खुराक के हवाले कर दी गई। आरिफवाला में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में क्रैकडाउन जारी है। क्रैकडाउन के दौरान 51 SP टिका कॉलोनी और नई गला मंडी में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। कार्रवाइयों के दौरान 90 टन गैर कानूनी जखीरा की गई गंदम बरामद कर ली गई। बरामद की गई गंदम महकमा खुराक के हवाले कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर रॉय फैसल इमरान का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। बहावल नगर दरिया सतलुज में भूखा पतन के मुकाम पर सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम खैमा बस्ती का क़याम किया गया है, जिसमें सैलाब मुतासरीन के बच्चों के लिए स्कूल, प्ले लैंड, मेडिकल के साथ साथ 3 वक्त खाने पीने और दीगर अशिया ज़रूरी भी दी जा रही हैं। तफसीलात जानते हैं इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बिलाल काज़मी से, जो इस वक्त कहीं पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज का सराब बहा, लेकिन यहाँ पर हज़ारों लोगों की आसी उम्मीदें अपने साथ लेकर बह गया। यहाँ पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से जो है खैमा बस्ती का जो इंतज़ाम किया गया, जहाँ पर हज़ारों बेयारों मददगार लोग जो सड़कों पर खुले आम आसमान के तले के नीचे रह रहे थे, उनके लिए यहाँ पर जो है खाना बस्ती का एहतमाम किया गया। मेरे साथ जो मरकजी मुस्लिम लीग के जो रहनुमा मौजूद है, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, यहाँ पर लोगों को फैसिलिटेज करने के लिए यहाँ पे उनको सहूलियात किन किन सहूलियात से आरास्ता किया और यहाँ के लोग अब कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आपके लिए वो क्या कहते हैं? सैलाब की तबाहकारियाँ यकीनन बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ पे ज़मीनें ज़ेरे आब आईं, जहाँ पे बस्तियों की बस्तियाँ तबाह हुई, वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद नकल मकानी करने पे मजबूर हुई, जो आज भी खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। जहाँ पे मरकज़ी मुस्लिम लीग अहले सैलाब ज़दगान के लिए खाना तकसीम करती है, जहाँ पे मेडिकल की सहूलियात देती है, वहीं पे छत फराहम करने के लिए अलकरीम खैमा बस्ती का अहतमाम किया गया, जिसके अंदर मस्जिद भी बनाई गई, जिसके अंदर बच्चों की तालीम के लिए स्कूल का अहतमाम भी किया गया। बल्कि कई दिनों से वो बच्चे जो सैलाब की वजह से परेशान थे, मुरझाए हुए चेहरे थे, उन चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए बेहतरीन प्ले लैंड भी बनाया गया है। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खाने की फराहमी के साथ साथ सिलेंडर, चूल्हे, दीगर ज़रूरियात की फराहमी के साथ साथ अल्लाह की तौफीक और फजल के साथ खिदमत का सिलसिला जारी और सारी है। जैसे कि आपने पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम
लीग के कारकुनान की बात से उनका कहना था यहाँ पर जो है मसाजिद बनाए गए हैं, स्कूल बनाए गए हैं, इस तरह जो है कुछ झूलों की शक्ल में बच्चों को इंटरटेन करने के लिए एक बेहतरीन जो है फैसिलिटी से रास्ता किया जा रहा है, जो कि पंजाब हुकूमत का विजन था। ये काम पंजाब हुकूमत तो ना कर सकी, लेकिन भावनगर की फलाही तंजीमें जो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर मैदान में। अगर बात की जाए दरिया सतलुज के नुकसानात की, यहाँ पर 145 मौज़ूआत समेत जो है ज़ेर आब हो गए। हज़ारों एकड़ फसलें, खड़ी फसलें हैं जो पानी की लपेट में बुरी तरह जो है ख़त्म हुई हैं। इस तरह अगर घरों की बात की जाए तो 6,666 मकान जो है मुकम्मल तौर पर जो दरिया बुर्द हो चुके थे। दरिया के किनारे पर 1,25,000 से प्लस लोग हैं जो खुले आसमान तले लोगों ज़िंदगी अपनी गुजार रहे थे। इन्हें फलाही तंजीमें भी इंटरटेन करनी है, लेकिन अगर बात की जाए सरकारी सतह पर तो इनका यहाँ पर इस तरह का कोई भी सरकारी सतह पर इंतजामात नहीं किया गया या कोई खैमा बस्ती इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं बनाई गई जो उनको वो मुकम्मल सहूलियत मिल सकें। जी, डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद अब्दुल समद निज़ामानी ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर असदुल्ला डाहरी के हमरा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कोट रोड में रिबन काटकर सर्वाइकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही मौके पर महकमा सेहत की 9 टीमों ने 9 साल से 14 साल की उम्र के तलेबात को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन भी लगाई हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल समद निज़ामानी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर असदुल्ला डाहरी, फोकल पर्सन वैक्सीनेशन मुहिम डॉक्टर रियाज शाह, प्रिंसिपल पैरामेडिकल डॉक्टर अब्दुल रज़ाक राजपेट, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी हुमैरा भी शरीक हुई। सादकाबाद में दरियाए सिंध ने कच्चे की दर्जनों बस्तियां डुबो दी। इलाका मकीन घर बार छोड़कर बचाव बंद पर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। बच्चे जिल की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में भी दरिया सिंध ने तबाही मचा दी। कच्चे की दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। इलाका मकीन घर बार छोड़कर बचाव बंद पर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मुतासरीन ने अपनी मदद आप के तहत प्लास्टिक के खैमे बना लिए। मुतासरीन का कहना है कि इंतजामिया ने चंद खैमे दिए हैं जो ना काफ़ी हैं, ना खाने का इंतजाम है, ना मेडिकल की सहूलत। छोटे बच्चे जल्दी अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और दूध के लिए और खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। आज तक हुकूमती इमदाद कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत को हमने रिक्वेस्ट भी की है, बराए मेहरबानी हमारा बच्चों की कोई सोचा जाए। जो आता है पिक बनाकर वीडियो बनाकर चला जाता है, कोई भी इधर हमें सहूलतगार कोई भी नहीं दे रहे हैं। दरियाए सिंध के बेरहम सैलाबी रेले ने आबादियों और सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलों को तबाह कर दिया है। टच्चे के बासी हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। हम खुद अपने आप मदद से निकले हैं, कोई इमदादी वाला नहीं आया, कोई इंतजाम नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सैलाबी पानी डेहरा मखदूम सैयद मोहसिन, बस्ती फिरोजदीन, बनू बस्ती हबीब खान, बनू बस्ती उमर, कच्चा मियाँ वाली 1L, कच्चा 2L, बंगला इच्छा, बस्ती अल्लाहदाद, बस्ती जाड़ा खान, बस्ती हाजी उमर के अलावा 40 बस्तियों में दाखिल हो चुका है। अगर बरवक्त इन मुतासरीन को इमदाद ना फराहम की गई तो इंसानी जानों के ज़िया का खदशा है। तारीख के बदतरीन सैलाब ने जहाँ पंजाब के दीगर शहरों में तबाही की दास्तानें रकम की हैं, अगर दरियाए सिंध में कच्चे के मकाम मंचन बंद, ढिलखशा, बंगला इच्छा, नबी शाह बंद के अंदरूनी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ ना की तो यहाँ भी सैलाब तबाही के अनमट नकोश छोड़ जाएगा। कैमरा टीम के साथ बख्तुजान, 5 न्यूज़, सादिकाबाद। उधर अहमदपुर शर्क के नवाही इलाके नौशेरा जदीद के इलाके भंडा वेंस में दरिया सतलुज के सताए हुए बेदरियार और मददगार अफराद खैमा बस्तियों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन खुली आसमान तले शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। दूसरी जानब निजी तंजीमें इन सैलाब ज़दगान के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई हैं, जो मुतासरा ख़ानदानों को खाने पीने की अशिया और साफ़ पानी फराहम कर रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि सरकारी सतह पर भी फौरी इमदाद फराहम की जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। खानेवाल में सैलाब मुतासरीन के लिए सबसे बड़ा रिलीफ ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान, CO डायरेक्टर डॉक्टर कैसर जावेद मुतासरीन की इमदाद के लिए मुतहरिक हो गए। पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल की जानिब से 100 अफराद में राशन बैग्स की तकसीम। CEO हेल्थ पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल डॉक्टर कैसर जावेद ने सामान डिप्टी कमिश्नर के हवाले किया। मजीद जानते हैं आमिर नसीर की इस रिपोर्ट में।
खानेवाल वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत पर सैलाब मुतासिरीन के लिए सबसे बड़ा रिलीफ ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान की कोशिशों से सीओ डॉक्टर कैसल जवेद मुतासिरीन की मदद के लिए पाकिस्तान लैंड यूथ कौंसिल की जानिब से 100 अफरादों में राशन बैग तकसीम किए। सीओ पाकिस्तान लैंड यूथ कौंसिल डॉक्टर कैसल जवेद सामान डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान के हवाले किया। डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान ADCG गुलाम मुस्तफा भी हमरा थे। फादल शाह रिलीफ कैंप में मुतासिरीन में राशन बैग तकसीम किए। मुतासिरीन को दिए जाने वाले राशन की मालियत 10 लाख रुपए है। लाइन यूथ कौंसिल की जानिब से 1500 मुतासिरीन को राशन देने की यकीन दहानी। डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान का कहना था अब तक 6000 से जायद सैलाब मुतासिरीन में खुश्क राशन तकसीम कर चुके हैं। 9000 से जायद अफरादों को रोजाना 3 वक्त का खाना भी दिया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमारी एक डेथ हमारी यहाँ पर रिपोर्ट में हुई, ना कोई ह्यूमन कैजुअलिटी हुई और ना ही हमारी कोई एनिमल रिलेटेड जो कैजुअलिटी। सीओ पाकिस्तान लाइन यूथ कौंसिल डॉक्टर कैसर जवेद का कहना था कि आज फाजल शाह गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में 100 अफराद में राशन तकसीम किया। मजीद 1500 अफराद में राशन तकसीम किया जाएगा। जनाब CEO PPF नादिर गुल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे ज़िला खानेवाल के लिए 1500 किट अनाउंस की हैं और आज उनका इफ्तिताह हमने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मोहतरमा सलमा सलमान साहबा से करवाया। और इस इलाके में जो मुस्तहिक लोग हैं जो सैलाब से बेघर हुए हैं उनमें हमने आज आगाज़ कर दिया है कि हम उनके डोर स्टेप पे आज फाजिल शाह में जो सैलाब में डूबा हुआ इलाका है यहाँ हमने लोगों को राशन तकसीम किया है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। पाकिस्तान लाइन यूथ कौंसिल के CEO डॉक्टर कैसर जवेद की जानिब से सैलाब मुतासिरीन में राशन तकसीम करना खुशाइन है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आमिन नसीर, चैनल 5 न्यूज़ खानेवाल। पंजाब फूड अथॉरिटी की मेलसी में गैर कानूनी स्लॉटर हाउस पर छापा। 6.5 मन बीमार जानवरों का गोश्त तल्फ कर दिया है। मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज, जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी ने सरकार रोड सर्कुलर पर मेलसी में मुसलसल रेकी के जरिए स्लॉटर हाउस पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान बीमार और मुज़र सेहत गोश्त बरामद किया गया। वेटनरी डॉक्टर्स के मुताबिक गोश्त इंसानी सेहत के लिए गैर महफूज और इस हवाले से तल्फ करना भी ज़रूरी है। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर गुजरावाला का नंदीपुर टाउन में ऑपरेशन जारी। 4000 किलो फंगस ज़दा मुरब्बा जात और ममनुआ नीले ड्रम तल्फ। 2 मुकदमात दर्ज। मीठे मुरब्बों के नाम पर धोखा करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। कार्रवाई के दौरान इंतहाई लाजिम रिकॉर्ड, मेडिकल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट्स अदम मौजूद पाए गए। सफाई के नाक़िस इंतजामात पाए गए। ममनुआ नीले ड्रमों में मुरब्बा जात बगैर ढांपे रखे गए थे। गैर मायारी अशिया का इस्तेमाल पेट और अंतड़ियों की मूजी बीमारियों का बाइस बन सकता है। खैरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सक्खर डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी और MPA बैरिस्टर शराफ शौकत राजपुर ने जिला काउंसिल चेयरमैन नादिर शौकत राजपुर, सेनेटर सैयद काजिम अली शाह और दीगर रहनुमाओं के हमरा तालुका सोभो देरों के मुख्तलिफ बचाव बंदों का दौरा किया है। इस मौके पर इंतजामिया की जानिब से किए गए हिफाजती इक़दाम पर वफ्द को ब्रीफिंग भी दी गई। दौरे के बाद गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर शराफ शौकत राजपुर ने कहा कि बचाव बंदों की सूरत हाल तसल्ली बख्श है और इन्हें किसी किस्म का कोई खतरा लाहक नहीं है। दूसरी जानिब शेखुपुरा जिला इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम खवातीन को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की मुहिम चलाई जा रही है। 9 साल से 14 साल की बच्चियों को 15 सितंबर से 27 सितंबर तक इंजेक्शंस लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने तकरीब का आगाज किया। इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाकर किया गया। इस मौके पर मेंबर सूबाई असम्बली, MPA, जिला अफसरान, CEO हेल्थ अथॉरिटी और हेल्थ वर्कर समेत मीडिया नुमाइंदगान ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। बूरेवाला के थाना फतह शाह के हुदूद 41 के भी दरिया सतलुज के इलाके से एक नामालूम शख्स की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक लाश सैलाबी पानी की सतह में कमी करने जाहिर हुई है, जिसे मजीद कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।